بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ
दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं। अपने दिल की कैफियत अपने अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि आप यकीन करिए वो बहुत प्यार से सुनेगा और उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतर जाएगा, क्योंकि बेशक वो हमारे दिलों के हर राज जानता है। इस दुनिया में मोमिन का जी कभी भी खैर की बात सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना ना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऐब ना टटोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें रुस्वा कर देगा। अपने मुसलमान भाई की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। इस दुनिया में आपका किया गया सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। 2 आदतें ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, एक कंजूसी और दूसरा बदइखलाकी। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। जब इंसान अपना दर्द अपने अल्लाह से बांट लेता है तो उसकी रूह को भी सुकून आ जाता है। ए अल्लाह, मुझे कदम कदम पर तेरी रज़ा की तलाश करने वाला बना दे। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। तो मुर्गे ने जवाब दिया कि ये दुनिया जगाने वाले का यही हाल करती है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज दूसरी नमाज से पहले होने वाली ख़ताओं को मिटा देती है। अपने हाथों से खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जब तुम कहीं रास्ता भूल जाओ तो वहाँ दाहिनी सिमत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब आलिम या अपने खैर ख्वाह के अलावा किसी को ना बयां करो। इस दुनिया में जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं रखता। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, बल्कि असल में वो आपके दुश्मन होते हैं। झुको सिर्फ वहाँ जहाँ तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। इस दुनिया में अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी से भर देते हैं। मुश्किल रास्ते अक्सर इंसान को खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है।
जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस दुनिया में तुम्हारा हकीकी दोस्त सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। इस दुनिया में शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कि अल्लाह जाती करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत अपनी नफ्स का हुक्मरान होना है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए होते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इंसान को अपने इखलाकी किरदार की पासदारी करना चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर होगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि तू परहेजदार बन, फिर तू अपनी रूह की ताकत दे। इंसान के चेहरे का रंग दिल के हालात की अलामत है। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता, वो बड़ा होकर भी उसे नहीं सीख पाता। इस दुनिया में नींद एक मुतमईन जिंदगी का सबूत है, क्योंकि खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। इस दुनिया में सब्र करने वाला वो होता है जो जलाली आदमी के साथ गुजारा करे। नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतज़ामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें
तारीकी में भटकता छोड़ दें। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूब जाती हैं। बेमौत मर जाता है इस दुनिया में बेआवाज़ रोने वाला। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रह पाता। इस दुनिया में हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया में गीबत करने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नशा किसी भी चीज़ का हो इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बग़ैर, कोई फूल कांटे के बग़ैर और कोई खुशी गम के बग़ैर नहीं मिलती। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अकल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को
बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, तो सोचो अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। अगर इस दुनिया में आपको जीना है तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। वसीला अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता, और अल्लाह ताला ही किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। किसी का असल रंग तब सामने आता है जब आप उसके लिए फ़ायदेमंद ना रहें। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ को लग सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। जब कोई सज़ा देने वाला ना हो तो आपका ज़मीर आपको सज़ा देता है। जाहिल लोगों से कम मिलो, वरना वो तुम्हें भी जाहिल बना देंगे। कल की बेहतरीन तैयारी यह है कि तुम आज बेहतर करो। आपकी दुआ का सारा खजाना आपको आपके माँ बाप से मिलना है। इस दुनिया में अगर कोई आपको रास्ता नहीं देता तो आप उसे रास्ता दे दो। नज़ारा इल्म का नहीं, नज़र का मोहताज है। इस दुनिया में आपका अपने गम को छिपाना, अपने साथ एहसान करना है। गुनाह को बुरा समझो, लेकिन गुनाहगार को बुरा ना समझो। बेबस इंसान का सजदा ही उसकी बेबसी का इलाज है। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान के दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। अगर इस दुनिया में आप रास्ता जानने वाले हो तो जो गुमराह हो चुके हैं उन्हें सही राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सुलूक किया जाता है और वो है वफा का। हम इंसान आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। इस दुनिया में मोहब्बत में किसी गैर की राय लेना हराम है। हर आरिफ आलिम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आलिम आरिफ हो। अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक़ में रहे तो सलामत, वरना तो फिर क़यामत ही क़यामत। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और वहीं बड़े दर्जे के लोग अदाब करते हैं। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, और उसी तरह हमारी औलाद भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम नहीं समझते। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। इस दुनिया में गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और वहीं बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अल्लाह कब राज़ी होता है? जब आप एक दूसरे को राज़ी रखें। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से आदाब की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अपनी नई नस्ल को
माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये उनकी नजात के लिए काफ़ी है। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। इंसान ने आसमानों के रास्ते तो दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन दिल का रास्ता अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। गम किसी तरह का भी हो, लेकिन हर इंसान के आंसू एक जैसे ही होते हैं। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मांगने से नहीं मिला करती। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। इस दुनिया में अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, बल्कि उन्हें समझना पड़ता है। खुद आप किसी की ताबेदारी नहीं करते और चाहते हैं कि आपके हर कोई ताबेदार हो, तो ये आपकी गुमराही है। अल्लाह से वाबस्ता होना ज़िंदगी है और अल्लाह से गाफिल होना मौत है। इस दुनिया में तुम्हारा लोगों से सुलूक तुम्हारा अल्लाह से सुलूक को बयां करता है। दौलत ज़िंदगी के लिए है, लेकिन आज की ज़िंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। इस दुनिया में अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। जिस मसाइल पर हम सब्र करते हैं, दुरेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। इबादत इंसान को निजात तक पहुंचाती है और इश्क उसे अपने महबूब तक पहुंचा देता है। शुक्र का मतलब ये भी है कि लोगों को आप अपने अमाल से, अपने माल से, अपने ख्याल से आसानी अता करें। इस दुनिया में अखराजात को कम करना अपनी आरज़ुओं को दबाकर ही मुमकिन है। इस दुनिया में मोमिन की उंगली दूसरों की तरफ नहीं, बल्कि खुद अपनी तरफ उठती है। छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रूहानियत की राह में आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हलक से नीचे उतरने वाला लुकमा हर सूरत में हलाल हो, हराम का ना हो। अमाल हो या इबादत, दोनों में इखलास बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में सिर्फ कनात पसंदी ही इंसान से दुनिया की मोहब्बत कम कर सकती है। गुस्से को पी जाना असल सुन्नत है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसका किनारा आखिरत और इसकी कश्ती तकवा है। जब भी कोई शख्स हमसे मिले तो हम उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें, और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। एक आलिम जिस कदर ज़्यादा इल्म का मालिक होगा, उसकी गुफ्तगू उसी कदर सादा और आसान होगी। मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शिद की रज़ा जोई है। इस दुनिया में मोमिन की किसी पर गिला, शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं होती। इल्म की ज़ाती भी बाज़ दफ़ा इंसान को भटका देती है। याद रखना, कभी भी मांगने वाले को अपनी चौखट से खाली हाथ ना लौटाना। ज़मीन पर सीधे होकर चला जाए, नाज और अंदाज या लटक मटक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान में गुरूर, तकब्बुर और किना पैदा होता है। गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजिम है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा राह पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर ज़ब्र करते हैं तो उसका हमें बेपनाह अजर मिलता है।